This is the Illimitable Experience podcast. Hello and welcome to another episode of the Illimitable Experience podcast. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. If you're watching this video, like this video. And overall, we guys like, share and subscribe. अपने friends के साथ अपने circle में we are posting great content. Today we have as a guest a friend of mine named Venu Gopal Shah, who is an engineer plus a music director, I would say, or music composer. A music composer. Hi Venu, how are you? I'm great. Thank you for having me on your show, and really happy to be here. It's a pleasure to have you. Venu, it is not a uncommon sight that engineers usually, they are very talented and then they walk into other streams as well and they nail it. So tell us how you as an engineer got into music and a little bit about yourself. Sure. That is actually a very good question. And the thing is that, like you say, a lot of engineers have these talents and they keep doing a lot of other things, right? But I think it's the vice versa. A lot of talented people are too scared to, take risks. And I include myself in that list. Like, if I wanted to make a career in music in India, in anywhere in the world, not just in India, there is a lot of struggle required. And a lot of Indians have this financial burden on them, right? First, our priority is to make ourselves financially secure and stable. And then only can we think about pursuing our passions and hobbies. So engineering is a pretty safe path to walk on sometimes. And then my journey with music actually started way back when I was just in class 1, because I started training in Hindustani classical vocal music at that time. And I was always interested in music. I was always, wanting to pursue music like as much as I can. But then again, like I have always played it safe my whole life, and I wanted to first do engineering so that I can get a good job and then I can sponsor my own music. And that's how, I have come to be this engineer who makes music. But the truth is that music has always been there. And then I've had to do engineering just so that I can sponsor everything on my own. Right. I always, people say that people should follow your passion. Everyone should follow their passion and make a living out of it. But Yeah. I, to some extent, find it irrational. I'll tell you why. All these passion-related careers are there. But let's take your example here of becoming a musician. Right. Now, the security part is obviously the first part that you do it. But the second most important part is that although the foundation of everything has been laid down by our parents, in terms of providing education and sending abroad and whatever they do for us, everything they do for us. Right. So it is again, I would say that it is our responsibility towards ourselves that now that we have done and, we are already earning, we are giving it back to them. Now we can also pursue our own thing. Get it? So that we reinvest in ourselves. If it would be, if it would have been done, okay, at the age of 18 only, you would have been encouraged to pursue a music career, okay. But God forbid something happened that, even by 25 or 27, you haven't cracked anything up. So all those 9 to 10 years of work is just, and money invested in you has just gone, okay, and no future has been created as so. Right. So in that way, I feel that it is rational. Okay, after we have done everything, we reinvest in ourselves and, do what you like and then, so amplify that part as well. Yeah, like in case of music. In stock markets, like there is a very famous saying, ki always take the risks that you can afford, and that is not just true for stock markets, it's true for life in general. Abhi, if I'm say 18 and my say father has a very big business that I don't have to really worry about anything in my like financial wise, I don't have to worry about anything else. Then yes, I'm free to pursue my
passion. Why should I do engineering? That is just something not I'm interested in, right? So if I can afford that risk, if I can say, if I can tell my dad, like, for the next 5 years, just have faith in me, I'll try to make it big in music. So my dad at that time will think, ki, Acha, if after 5 years he's not able to do anything in music, can I still support this family? If he's like, yeah, I have enough funds for the next 20, 25 years, then why not do whatever your heart tells you to do? But obviously, in lots of cases, you are not able to afford these risks, right? Yeah. So I was saying ki you always have to ensure that whatever risks you are taking, you are able to afford them, right? And you always have the backbone to face the consequences. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आज I make a decision and then tomorrow I am just blaming myself for doing that. Like tomorrow, if things don't turn out, I should be like, okay, fine, I did something, it did not work out. Now what next? I should not go down that rabbit hole where I am just blaming myself कि यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, right? So in life, I think there are always two things that one is you have to do, one is you want to do, and actually there is one more that you need to do. So need or have एक ही चीज होगी. So one is that you need to do and one is that you want to do. So I want to do music, but I also need to ensure that financial stability, right? right. तो वो एक चीज देखना है एंड एट द सेम टाइम मुझे अपना रिस्क असेसमेंट करना है अपनी लाइफ में हर स्टेप पे. बिकॉज अगर सिर्फ मैं ही होता, अगर मेरा इमीडिएट फैमिली होती ही नहीं, इफ आई एम दी ओनली वन दैट आई हैव टू लुक आफ्टर, तो फिर भाड़ में जाएगा दुनिया. मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं म्यूजिक बनाऊंगा. अगर कल को मैं सड़क पे भी आ गया तो मुझे अपना ही ध्यान रखना. बट अगर मेरे साथ मेरे घर वाले भी सड़क पे आ रहे हैं तो फिर तो वो बात करती, राइट? फिर योर पॉइंट कम्स इनटू द पिक्चर कि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now I have to ensure that my family is moving ahead with me, right? तो ये सब चीजें देख के, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज सो मच, देयर इज सो मच कंपटीशन. अगर म्यूजिक में भी जाना है, देयर आर thousands and thousands of talented musicians. उनमें से हैंड पिक करके कुछ लोग फेमस होते हैं, सब फेमस नहीं होते. अनफॉर्चुनेटली life is not fair to everyone, right? There are maybe इतने सारे talented musicians who you will never get to know about in your life. तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, and it's again not so straightforward that you have a passion and you just continue. But still I know a few people personally जिनमें इतनी हिम्मत है कि they are like कि म्यूजिक ही आता है हमें, तो हम कुछ और क्यों करें. तो दे आर फाइटिंग हार्ड. और उसमें भी ऐसा होता है, जैसे आई पर्सनली नो अ गिटारिस्ट, तो ऑब्वियसली मनी की प्रॉब्लम है, तो ही स्टार्टेड टीचिंग गिटार बिकॉज ही नोज कि भाई गिटार सिखाने से भले उतने पैसे ना मिले, बट इट्स स्टिल समथिंग जो मैं करके अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग. तो देन यू, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो बैकबोन होनी चाहिए टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा. Right. So the factor of accountability comes into, and responsibility does come in. Yeah, I mean, this I don't know. There are a lot of people, I guess, they have this parallel lines running along, where one, they are working a day job, and people are at the same time working their asses off on their weekends just so they can cut off the rat race once the their business or their passion starts generating the revenue. Exactly. Wow. And yeah, I mean, just to add on to that, it's like कि life में ना opportunities तो आती है. तो अगर मैं, if today like I am working Monday to Friday my day job, and then रात होते साथ या weekends में I am just doing music. So sometimes there is this frustration like what am I doing with my life, right? Life उतनी लंबी है नहीं जितनी हम सोचते हैं. बहुत जल्दी, like it's time is running out, right? But at the same time it's still full of opportunities, and sometimes you have to take a leap. It could be a leap of faith, and it could be sometimes you have to take a risk कि भाई maybe this could work out, maybe this cannot work out. तो आती है opportunities, you have to wait for them, and then again at every step you have to analyze and assess your risk. वो पूरा stock market ही है life basically देखा जाए तो. Right. Now, when you talk about opportunities, now, how did you,
find, I mean, I understand that you are learning music since childhood, but where did you venture at, or at what point did you discover that, oh, I want to have a career in music? Was it in one of those years of engineering? And how was it? That's a good question. Yeah, in my undergraduation, while I was doing my BTech, तब बीटेक में होता है ना कि देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स वेर यू गेट टू परफॉर्म. तो जब Hmm. ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज जो फीलिंग आई थी मुझे, लाइक देर आर सम थिंग्स, आई मीन just to give you an example, like first time when you did a podcast, or first time when you did something, when you even saw a podcast and you're like, this is fun, like this is amazing. तो म्यूजिक तो मैं बजाता आ रहा था, बट जब मैं स्टेज पे चढ़ा and I saw that people are reacting to what I'm playing, और परफॉर्मेंस होने के बाद ऑब्वियसली यू सोक इन द अप्लॉज, तो वो जो फीलिंग आई थी मेरे अंदर, इट वाज लाइक कि यार, इफ आई कैन डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, हाउ फकिंग गुड माय लाइफ इज, राइट? यही तो मुझे करना है. एंड आई एम लाइक कि, तो फिर मतलब ऑब्वियसली कॉलेज में और अपॉर्चुनिटीज आते रही, मैं परफॉर्म करता रहा. एंड फिर मतलब उस टाइम पे भी कैसे थे कि हम यंग म्यूजिशियंस होता है कि उतना क्रिएट नहीं करते म्यूजिक, रादर हम कवर करते हैं. बट एक एक रफ टाइम आया था मेरी लाइफ में जब मेरे को थोड़ा सा लाइक करियर वाइज भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, और लाइफ एज इन जनरल समझ नहीं आ रही थी. दैट इज अ टाइम व्हेन आई रोट माय ओन फर्स्ट सॉन्ग, और खुद का गाना फिर मैंने कुछ टाइम बाद कॉलेज में परफॉर्म किया, और मतलब जो फील आई उसमें, आई वाज लाइक कि अब गा परफॉर्म तो करना ही है, पर अपने खुद के गाने करने हैं. तो वो एक ट्रिगर था मेरी लाइफ में जब व्हेन आई डिस्कवर्ड कि ऐसा होता है कि सी वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, डिफरेंट इमोशन, सबको खुशी भी होती है, दुख भी होता है, सब सब कुछ होता है. एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस समहाउ. कुछ लोग सिर्फ बातें करके एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, कुछ ना कोई करता है. मुझे पता लग गया कि मेरे लिए वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन म्यूजिक है. मैं जो भी सोचता हूँ उसको जब लिख के गाता हूँ, उसको म्यूजिक देता हूँ, इट्स लाइक गिविंग अ शेप टू माई फीलिंग, राइट? तो वो आई थॉट कि वर्क्स फॉर मी, एंड दैट्स हाउ आई जस्ट started writing music, making music, and eventually thought that this is something I would love to do full time. That's, this college fest are a great platform to, discover your own self that you haven't discovered it yet. For sure. For just to build on this, when I started my law college, I went around doing open mics for, for stand-up comedy. And I did it for like 3 to 4 months, I would say, but I didn't do well in any of it. Like, I know it was too early to make a call कि अच्छा I'm good at it or not good at it, but I could sense that, okay, I'm not funny the way the crowd wants me to be funny. So then I gave up that option. Then again, the college fest came up and I did hosting of that show. And I felt that, oh, this is something I like, okay, because it is kind of semi-formal as well. You are announcing the guest and everyone. Right. So that is the formal aspect of it. Midway, you just have to be a little silly to get a few laughs. So it's not fully Right. asking the crowd to, laugh also, at the same time, not boring them completely. So I'm like, oh, this is something that I can do with the mic. And I've had this obsession with mic right from school. So the college just accentuated that part of me. Then again, for like I did in my second year, okay, I did the emceeing part in as many events as I could. But again, in the third year, this pandemic happened, so there was no physical thing to take place. So then during the pandemic, I was wondering, ke yaar, kya kare yaar? Like I still love the mic. I know I'm not funny, I've admitted it, but at the same time, I can talk and just sprinkle some laughter into it. Right. So yeah, then this after watching Joe Rogan, I'm like, this is something I can do. This is something I can do. I have a really good, good. I ask good questions and I can build the conversation. So right. the college festa really brings out the best in you. Yeah, for sure. और college life एक ऐसा time भी होता है ना where you are very free.
मतलब ठीक है, Hmm. कॉलेज के एग्जाम्स का टेंशन होता है, बट ऐसे लाइफ तुमने देखी नहीं होती है ना तब। तो Right. बहुत ही ऐसे आजाद परिंदे वाली फीलिंग होती है कि जो बस दिखेगा वो मैं करूंगा, यू नो। And it really sets the platform, like you said. And one thing in common between both of us is we both love mics. Different for different reasons, but we both have this We both obsession love the with bikes. mics. Yeah. Yes. So That's I completely understand कि वो एक बार वो it's like a नशा, you know, a positive नशा that एक बार वो माइक पकड़ के कुछ you say on stage and you just see that response and you just soak in that feeling. soaked in You that. just don't Right. want that feeling to end. Right. तो खत्म तो obviously होगा, so you want to just keep going back and back. Keep going. Right. Plus, there are no consequences as well when you're doing it in the college fest. Like even if you Right. bomb, like okay, college वालों को ही पता चला है. Next year we can just improve again. And like you said कि there were times when people were not laughing or you were like कि this is not working. Things like that happen to everyone and it's happened to me. एक बार मैं जब मेरा एक लाइव परफॉर्मेंस था, तो एक हाई नोट हिट करते हुए मेरी आवाज ही फट गई। अभी Damn. इतने सारे लोग बैठे हैं वहां पे, कॉलेज की जो फैकल्टी वो भी है, एंड Hmm. आई एम सिंगिंग एंड माय वॉइस जस्ट एकदम फट गई। बट आई केप्ट गोइंग, मतलब आई फिनिश द सॉन्ग, बट उसके जो वीडियोस वगैरह जब बाद में आए, मैं कुछ 3-4 साल तक मैंने वो वीडियोस देखे नहीं, बिकॉज मेरे को इतनी वो अंदर वो हो गई थी ना, शर्मनाक चीज, जैसे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मतलब इवेंचुअली वो उसके बाद देन व्हेन नेक्स्ट टाइम आई वेंट ऑन द स्टेज, थोड़ा सा घबराहट थी कि यार एक बार मैंने बहुत भयंकर वो अपनी आवाज फाड़ी है, अभी फिर से ना हो। पर भाई उस बार लकीली नहीं हुआ, और फिर से जब तालियां बजती रही, लाइक कि नहीं यार वो एक बार को होता है ये सबके साथ। Right. Yeah, I mean those things do happen, but it's a part, I guess, of the process. It's a part of the process, exactly. So, Venu, what is it that fascinates you about music in a way that you started composing it as well? Like I understand people do covers and upload it on YouTube and they just do stuff like that. But what really pushed you or gave you put that in the creative zone that you started composing? यार मतलब अगेन इसकी एक चीज तो वही रीजन है जो मैंने बताया कि जब मेरा एक थोड़ा टफ टाइम था एंड आई वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, राइट। Mm-hmm. अभी ठीक है, पेरेंट्स समझते हैं एक हद तक, बट व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, लाइक यू टर्न 18-19, एक डिस्कनेक्ट आ जाता है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। इट्स नॉट लाइक कि वो समझना बंद कर देते, बट देन देर आर सम थिंग्स यू कैन टेल देम, सम थिंग्स यू कांट टेल देम, राइट। Hmm. तो ऐसे में फ्रेंड्स तो ठीक है, एक एक हद तक होते हैं, मे बी योर सिग्निफिकेंट अदर, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देयर इज समवन यू कैन टॉक टू। बट फिर भी आई थिंक हर इंसान के पास एक तिजोरी रहती है जो दे कांट रियली टॉक अबाउट दोज थिंग्स, एंड यू नीड सम मीडियम टू लेट इट आउट और एक्सप्रेस इट। तो व्हेन आई फर्स्ट was in that phase when I was feeling very low, जो मेरे लाइफ का वो टाइम था, I just wrote down a poem expressing myself कि मतलब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। फिर ठीक है, पोएम लिख ली एंड मैं गिटार लेके बैठा हूँ और मैंने उसको गाने में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसे ही गाने लगा। मैंने ऐसे एक दोस्त को सुना, उसने बोला कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, लाइक इट साउंड्स लाइक अ प्रॉपर सॉन्ग। तो मैंने फिर उसको बनाया गाना और अभी रिसेंटली रिलीज किया उसको स्पॉटिफाई पे। वो गाने का बाय द वे नाम है गूंजते अल्फाज, जो इनिशियली मैंने पोएम लिखी थी जिसका मैंने गाना बनाया। So should we have a look at it? We'll have a look at एब्सोल्युटली, या it. या Dave, can श्योर you pull श्योर। that up? So on Spotify there is an album that came out last year known as जिंदगी के गीत। तो जिंदगी के गीत का जो पहला गाना है दैट इज गूंजते अल्फाज। Goons the Alphas. हाँ, सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, गो टू सी डिस्कोग्राफी, दिख रहा है वो सिंगल्स एंड ईपीज के साइड में, सी डिस्कोग्राफी, राइट में। uh, हाँ ये, कम डाउन, बहुत गाने रिलीज कर दिए यार। हाँ, ये जिंदगी के गीत में पहला गाना गूंजते अल्फाज। Oh, it's a 5 minute song. It's a long song, so you don't have to play the whole thing, but I'm just telling you that this is the first song that I ever wrote, Right. and this is what basically started it for me.
Just listen to a few seconds, I would say. Sure, sure, sure. Yeah, yeah. Oh, I can't hear you. Now I can. Now I can. You go. क्यों तेरी जिंदगी रुकी हुई सी लगती है। एक बार तू आके खोल दे जरा, तेरी ही है ये जमीन, तेरा आसमां। पल ये पल जो चले जाते हैं, क्यों तुझको तड़पाते हैं मेरे। Right. Like I don't have the right to comment something on it, but it sounds good. You know, Oh that no, as no, you that's absolutely have all the as right to comment. as a listener, that's all I can say. Like, see, I'm not into, you know, understanding the music completely. Yeah. But I like there are something that I'm like, oh, this is good. Okay, I just vibe with the song and I feel okay, this is good. Right. So yeah, I like the vibe of the song. I'm Maybe glad. And again, if you listen to the initial few words that I was singing, क्यों तेरी जिंदगी रुकी हुई सी लगती है. So now that I told you the story behind the song, you can trace it back to imagine एक 19 साल का लड़का कॉलेज में बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई है नहीं उसके आसपास. मतलब शायद थोड़ी देर पहले रो रहा था, वो बहुत दुखी है जिंदगी से, कुछ मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है ऐसे में क्या करे, तो वो क्या करता है, बस एक पन्ना निकालता है, उस पर लिखना शुरू करता है, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट ही केम अप विद, राइट. तो right. वो इतना एक पावरफुल चीज था, वो एक मोमेंट जो था इतना पावरफुल था मेरे लिए कि मुझे एकदम से हल्का लगने लगा उसके बाद, कि जो भी मुझे दुख हो रहा था या जो भी मेरे को बुरा लग रहा था, नाउ आई एम सडनली लाइक कि ओ मैंने इसको कुछ लिख दिया एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. और फिर जब मैंने उसको गाया, उसको म्यूजिक दिया, तो इट गेव मी होप कि अगली बार जब मुझे बुरा लगेगा तो मैं एक्साइट हो जाऊंगा कि अरे फिर मैं एक और गाना बना पाऊंगा. यू नो. तो वो इसलिए आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस वाज डेफिनेटली द मोमेंट दैट मेड मी रियलाइज कि मेकिंग म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट देन कवरिंग म्यूजिक. मतलब कवरिंग म्यूजिक इज हैज समथिंग स्पेशल अबाउट इट, क्योंकि जब तुम पुराने गानों को भी कवर करते हो अपने अंदाज में, उसका एक अलग मजा होता है. गानों को कवर करने का एक ये अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करने के लिए काफी कुछ मिल जाता है. जैसे अगर मैं किसी अरिजीत सिंह का गाना अगर कवर करूँ, तो मेरे को समझ आएगा कि अच्छा जब वो गाना बना था उन लोगों ने कैसे सोच के बनाया, उसके क्या कॉर्ड्स है, गिटार पे कैसे बजता है, सीखने के लिए अच्छा होता है. व्हेन यू मेक इट योरसेल्फ, तो तुम्हें कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़ रहा है, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर देखना पड़ रहा है. लाइक यू look inside you कि where exactly this feeling is emerging from, and then you translate into a song basically. Right. So I guess this has to be a skill that, you know, a lot of people I mean everyone has to learn, that there has to be a way to channelize those feelings which you cannot tell to everyone or even the, you know, nearest people, you know, into something that, you know, that is productive, I would say. Right. See, Right. you said that It's when you were, important. Yeah. it's important because when you say that you were in college and, you know, you had that phase of loneliness, Right. and you Right. converted that into an art. Right. This is like really good that you made something out of it. At the same time, if you wouldn't have, you know, worked on it, ki, Acha, I'm feeling lonely, so what should I do? And rather just Right. ignored it, Right. it would have pushed you in a very dark space where it would have been, you know, the consequences Exactly. could have been something else. Right. That's a very important point. Like जो भी, and especially these days we are talking a lot about mental health, mental awareness. तो उसमें यही होता है ना, जब इंसान अकेला हो जाता है, the first thought that comes to mind is कि कोई समझ क्यों नहीं पा रहा मुझे. Right. So, you know, basically there is a dependency on the world कि मुझे लोग समझे काश. And it just puts you in a very lonely position कि भाई अकेला हूँ मैं, इतनी पूरी बड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं अपना. तो जैसे मेरे लिए मुझे एक म्यूजिक मिल गया कि भाई आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है, यू नो. जैसे मैं बता रहा था कि डांस करते हैं लोग, आर्ट बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, कहानियां सुनाते हैं, पढ़ते हैं,
sometimes people read novels and they find themselves in different worlds. मतलब somebody has, like everybody has to find that something in their life जिससे वो ये सारा अकेलापन escape कर सकता है कुछ देर के लिए, you know. Right. So that's very important. That's a good point. Yeah. And now that, you know, people like us are talking about, and it's not only us, there are many people, you know, trying to give away that message that, you know, it's okay to feel lonely and stuff like that. It's now it's a kind of cooling down. Okay, if I feel lonely, I have to do something that, you know, channelizes it in some direction. Yeah. Right. Yeah. So when And you wrote also, this, I mean, yeah, continue. You continue. Just to conclude that statement is कि a lot of times our happiness or sadness depends on other people. कि it could be anybody, our parents, again, our significant other, our friends, which is, I feel, ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि कोई और क्यों हमारी खुशी या हमारा दुख कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए. तो अब है जैसा है, अब लोगों को तो बदल नहीं सकते, अपने आप को ही बदल सकते हम. Right. So this is the first song that you composed, right? The one that we just heard. And I liked it on the first 50 seconds of it. But at the same time, my first expression, you also saw that I was shocked. कि first composition ही 5 minutes 23 seconds का कैसे कर दिया? Because now अभी का trend, if you see people, you know, all the famous producers and composers, they'll do like Right. 2.5 minutes or 3 minutes max. And they end it. So ये कैसे किया कि तेरा first composition ही इतना बड़ा था? ये जो मतलब ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, लाइक आज का जो म्यूजिक सर्कल में भी लोग बातें करते हैं ना, कि एक तो लोगों का अटेंशन स्पैन और पेशेंस ना के बराबर है आज. इवन मतलब लाइक फ्रॉम अ पॉडकास्ट पर्सपेक्टिव यू विल वांट टू मेक टीजर्स जो इमीडिएटली लोगों का अटेंशन ग्रैब करे. यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? यूट्यूब तो था, काफी नहीं था क्या वो? यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया जिसपे अब सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, बिकॉज लोगों का पेशेंस ही नहीं है ना. लोग देखना ही नहीं चाहते. उनको पहले 5 सेकंड में दे कांट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, दे विल जस्ट स्विच द टैब. एंड सेम हैपेंस विद म्यूजिक कि भाई 3 मिनट में पैक कर दो जो भी कर सकते हो. बट इस पूरी प्रोसेस में ये हो रहा है ना कि योर क्रिएटिविटी इज बीइंग लॉस्ट. और जब मैं अपना पहला गाना लिखूंगा, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हु इज गोइंग टू लिसन टू माई सॉन्ग. तो वो जो मैंने पहली पोएम लिखी थी, इट हैड 4-5 पैराग्राफ्स. तो मेरा एम ये था कि पूरे गाने को जस्टिस देना है. उसमें काट कसर नहीं करनी है. उसमें ये नहीं सोचना है कि ये 5 मिनट तक कौन सुनने वाला है. क्योंकि आई कंप्लीटली अग्री कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल लिसन टू द कंप्लीट सॉन्ग, बट जो सुनेंगे वो समझेंगे, यू नो. तो ऑब्वियसली लाइक अभी कुछ मेरे गाने हैं जो 3 मिनट के भी है, बट वो इसलिए 3 मिनट के नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग जल्दी जल्दी सुने उसको. वो इसलिए क्योंकि वो गाना है ही 3 मिनट का, उसमें मैं खींच नहीं सकता उसको. अब मूवीज का एग्जाम्पल ले सकते, लाइक 1.5 घंटे की मूवीज लोग देखते हैं यूजुअली नेटफ्लिक्स पे, बट जैसे नोलन जैसे लोग 2.5 घंटे से कम की मूवीज बनाते नहीं है, क्योंकि उसमें उनको पता है ना कि यार काफी कुछ काटना पड़ेगा हमें. They don't want to compromise on that. So that battle is always there. और आज के competition market में तो भाई लोग सुनते नहीं है अपने गाने, to be very frank. बट फिर बात वही है कि तुम अपने लिए गाने बना रहे हो या लोगों के लिए बना रहे हो. वो अगर तुम सोच लिया, then it should not be a problem. Yeah, even I face the same problem, you know, that when we started doing the podcast, and there were a few, so in the initial stage itself, like we had recorded 3 to 4 episodes, and my father had, you know, shared it with their friends ki acha what's this episode and ye karo, and even a few friends of mine I had shared with them. Right. So this twice or thrice there were times when they came up and like, अरे ये podcast बहुत लंबा है यार, कोई सुनेगा नहीं. Exactly. See, first of all, I don't consider myself as a preacher or your motivational speaker that I have to say something that is, you know, important to their life and, you know, people take something out of it. I'm here to talk with people because the conversation can go anywhere, right? That just 10 minutes ago, we were talking about mental health and channelizing it.
Now we are talking about the music industry. So the Exactly. conversation can go anywhere. I don't want to control the conversation right from the beginning. Canada, you'll answer these questions only, nothing beyond it. Number one. Right. Number two is it's not necessary that the whatever content that is out, like maybe 3 minutes, 5 minutes, 45 minutes or 1 hour, that person has to learn everything. पूरा 45 minutes उसको ऐसे नहीं कि this is a life lesson, this is a life lesson, I'm going to write it down. There has to be the, you know, the lighter versions as well. Okay, ये थोड़ा conversation intense हो गया, now we'll, you know, mellow down a little bit, then again we can catch up. Exactly. So these things going around and explaining, I felt like, you know, I am not explaining it to them. As long as I am fine कि अच्छा 1.5 घंटे का है एपिसोड, नो प्रॉब्लम, डालूंगा तो मैं पूरा 1.5 घंटे का ही, जस्ट इंस्टाग्राम पे like 30 seconds से कुछ डाल दिया which is like really life changing, then that would be fine. But I'm not going to reduce the time span of the podcast to 45 minutes just so I can appease people. See, first of all, I'm completely against appeasement. ये appeasement वाला कभी चलता नहीं है. Right. So the way you feel about doing your thing, वो same चीज जैसे मैं अपने म्यूजिक के लिए फील करता हूँ. अब इसमें एक और जो पॉइंट है वो ये है कि भाई जब गाना लोग सुनते हैं ना, they just want lyrics, मतलब कोई गा रहा है शुरू से. म्यूजिक सुनने का लोगों में पेशेंस नहीं है भाई. A song is not just about the vocals एक पार्ट है गाने का, बट गाने में और भी तो इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उसमें एक समा बन रहा है, एक माहौल बना रहा है गाना, राइट. तो कई बार जैसे एज अ म्यूजिशियन जब मैं गाने बनाता हूँ तो यू लिसन, जैसे अभी यू लिसन टू दीज 30 seconds ऑफ गूंजता अल्फाज, तो विद द फर्स्ट लिसन यू प्रॉब्ली रिमेंबर माई वॉइस, यू प्रॉब्ली रिमेंबर शुरू में एक ढिंग करके एक बेस बज रहा था, but उसके अलावा भी there are at least 4 different instruments playing there, which obviously I wouldn't expect someone to catch in the first go. But the thing is कि वो मैंने वहाँ पे एक reason से डाला है, right? To create that vibe, वो एक थोड़ा एक sad subdued सा vibe कि भाई बंदा बैठा हुआ है गम में, जिंदगी चल नहीं रही है, and those bass beats are meant to represent the heartbeats, कि उसे अपनी धड़कन सुन रहा है, right? तो वो मैं सोच के डाल रहा हूँ. सो इट्स नॉट जस्ट माई वर्ड्स दैट आर कन्वेइंग द मैसेज, वो पूरा समा बांधने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. कोई ये समझे तो ठीक है, कोई ना समझे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई लोग गधे. आई वुडंट से दैट. इट्स लाइक कि लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बट मैंने कुछ सोच के डाला है. बट कोई अगर मुझे आके बोले कि यार इसमें तो सिर्फ म्यूजिक है, तू गा इतना कम क्यों रहा है, वहां मैं बोलूंगा ना फिर तो तुमने समझने की कोशिश भी नहीं करी, तो फिर तुम गाना सुन क्यों रहे हो. अगर तुम्हें गाना सिर्फ वोकल्स के लिए ही सुनना है तो फिर वैसे गाने हैं, वो जाके सुनना चाहिए. तो मतलब वहां पे फिर चॉइस हो जाता है कि भाई टेस्ट वाली बात हो जाती है कि हमें ऐसे गाने पसंद नहीं है जिसमें म्यूजिक है. एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिक, यू नो, ऐसे काफी फेमस आर्टिस्ट है जैसे ए आर रहमान के जो कुछ पुराने गाने, जैसे एक जिया जले जहाँ जले बहुत फेमस है, राइट. उसमें लता मंगेशकर ने गाया तो बहुत अच्छा है, पर उसमें जो म्यूजिक भी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वो दैट इज व्हाट कंप्लीट्स द सॉन्ग. तो ए आर रहमान ने भी वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजवाए लोगों से, जो ही थॉट ऑफ दोज थिंग्स, दे आर देयर फॉर अ रीजन, फॉर दैट वाइब, फॉर दैट एनर्जी. तो एक ये भी लोगों का पेशेंस चला गया है कि गाने में वो दे हैव स्टॉप्ड अप्रिशिएटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, उनकी एक ब्यूटी है. Right. Like, yeah, that's true. That attention span wala argument is always put forth by people who, I guess, don't have a understanding of any art form, or they are just there, you know, listen or consume content for the sake of consuming. That is what I've felt, because Right. I don't know how to put it in exact words, but see, every meaningful thing takes a lot of time. Like you started your music composition when you were in your engineering college. That is why you are able to compose music for podcast, and you know, people who are demanding कि give me something from your side. Abhi, if you would have started 2 months ago or like a year ago, and कोई तेरे को आके बोले कि अरे गाना बना, तो like what would you?
Yeah, तो ऐसा नहीं है ना कि अरे हाँ दिस इज इट, यू कंज्यूम वॉट एवर यू वांट टू, लाइक देयर इज मीनिंग टू इट, दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू चीट ऑन पीपल एज वेल. जस्ट बिकॉज आई डोंट exactly. अंडरस्टैंड म्यूजिक दैट डज नॉट मीन दैट अरे कुछ भी चिपका देते हैं इसको. Exactly, exactly, So, exactly. Yeah. No, that so I that guess, that's a fair. because वो every टाइम के साथ वो meaningful, बिल्ड yeah, होता है. every meaningful thing takes time and it has to be Yes. consumed even in a steady manner के. At the same Right. time you are not demanding कि तू 5 मिनट का गाना आप पूरा सुन, तू 2.5 मिनट का हाँ, पहले सुन, एग्जैक्टली, 2.5 मिनट का कल सुनना. बिल्कुल. हाँ, मतलब इफ द सॉन्ग डिमांड्स कि भाई उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस में मैंने जानबूझ के बनाया है कि यार वो जस्ट हैव दैट पेशेंस और एक बार में ही देखो या एक बार में ही सुनो, तो मे हम्म. बी यू विल बी लाइक कि अच्छा ठीक है बंदे ने बोला है तो मैं एक बार सुन लेता हूँ. बट वो भी अगर सुनने के बाद आई शुडंट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई लिसनर कि दे आर गोइंग टू लाइक इट या दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट व्हाट आई हैव डन टू इट. वो समझना नहीं समझना, इंटरप्रिटेशन इज कम्प्लीटली नॉट माई हैंड्स. मेरे हाथ में बस ये है कि मेरा म्यूजिक मेरे लिए सिंसियर होना चाहिए. कि कल को मैं, अब जैसे ये मेरा पहला गाना है, अगर इसको सुन के मुझे रिग्रेट्स आने लग गए कि ये मैंने क्या बना दिया, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा ना, मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता. बट नाउ दैट आई लुक बैक एट माई फर्स्ट सॉन्ग, ऑब्वियसली इट्स नॉट परफेक्ट. आई नो कि मैं आज अगर सेम गाना बनाऊं तो मैं इसको 10 गुना ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ. पर मैं जानता हूँ कि भाई उस दिन जो मैंने बैठ के लिखा था वो मेरे लिए एकदम सिंसियर था. आई एम हैप्पी विद दैट फैक्ट. Right. So now, see, now that we agree that every art form is a quite a procedural form and things have to be refined. What is the process for you to compose the song? ये मतलब, डू यू वांट अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट आंसर, बिकॉज Yeah, yeah, ऐसा तो long फिर answer, कुछ. definitely. Yeah. सी, ऐसा है कि आई थिंक हर आर्ट फॉर्म में देर आर टू वेज टू गो अबाउट थिंग्स. फर्स्ट इज अ वेरी बुक अप्रोच. Hmm. मतलब जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, कोई भी आर्ट फॉर्म ले लो, म्यूजिक ले लो, आर्ट ले लो, पेंटिंग ले लो, ये सब चीज़ें बहुत सालों से चलते आ रही है. Hmm. ठीक है, जैसे पेंटिंग में कितने बड़े बड़े नाम रह चुके हैं ऑलरेडी. सो देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. द फर्स्ट टाइम इफ यू गो टू लर्न, चलो सिर्फ म्यूजिक की बात करते हो, म्यूजिक में भी सिर्फ गिटार की बात करते हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू लर्न द गिटार. Hmm. what is the first thing that you will do if I give you a guitar and say कि तुम्हारे पास सब resources है, तुम्हें गिटार सीखना है, तो what is the first thing that you will do? Like when handed to me, like what I would do is I would just play with it randomly, like a See, नहीं, but 5-year-old kid you'll would soon do. realize, right, but soon you'll realize कि you just don't know how the instrument works है, कैसे Right. बजाना है इसको. Hmm. So the first thing you will do probably is maybe YouTube पे you'll see a tutorial or maybe you'll get in touch with a guitar teacher जो Correct. तुम्हें कुछ चीज़ें बताएगा जो कि है, मतलब वैसे ही गिटार काम करता है, उसमें कोई देर इज नो नथिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ इट. जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉर्ड है, कुछ ई माइनर बजाना है, डी बजाना है, सारी जो भी कॉर्ड्स है वो एक ही तरीके से बजती है, तो वो तुम्हें शुरू में सीखना ही पड़ेगा. तो ये एक बुक अप्रोच होती है कोई भी चीज सीखने के लिए. द अदर अप्रोच इज इंटुइशन. इंटुइशन क्या है? जो यू सेड कि भाई मैं गिटार लेके बस बैठ गया और जैसे बच्चा खेलता है और मैं बस बजा रहा हूँ, मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टीचर आके मुझे क्या सिखाने वाला है, कौन सी किताब क्या कहती है, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं ये बजाऊंगा. तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो अपनी मन मर्जी चला रहा है. दैट इज व्हाट आर्ट इज अबाउट. वो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ना, कोई और तुम्हें क्यों आके बताए कि ये सही है या गलत है. Right. बट एट द सेम टाइम मतलब ऐसा है कि एज टाइम गोज ऑन यू रियलाइज कि इट हैज टू बी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मतलब द बुक इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द गिटार वर्क्स. मे बी योर इंटुइशन इज जस्ट नॉट इनफ. मतलब इंटुइशन को भी ग्रो करने के लिए कुछ एक जरिया चाहिए. Like if I teach you a few chords, a few styles to play, then you allow your intuition to work on it, right? तो ये दो approaches. तो जब मैंने गिटार सीखना पहले शुरू किया था, तो obviously like first time जब गिटार उठाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बजता है, क्या क्या करूँ मैं इसके साथ. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे शुरू शुरू में हेल्प किया था. उसने मेरे को थोड़े बहुत गाने, एक वो है ना विकी डोनर का पानी दा रंग,
कॉमन गिटार सॉन्ग है, तो वो उसने मुझे राइट। सिखाया था। सीखने में भी इजी था, मैं सीख गया। तो बहुत जल्दी मैं बोर हो गया, मेरे को लगा कि यार ये तो चलो ठीक है, मेरे को आ गया, बट अब क्या। ठीक है, 2-3 और गाने सुन लिए, 4-5 और गाने सीख लिए, बट उसके बाद क्या, लाइक ये तो बहुत बोरिंग बोरिंग होता जा रहा है, मैं वही वही चीजें बजा रहा हूँ, अलग अलग गाने गा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जो इंटुइशन वाली बात कर रहा था वो यहाँ पे आ गई कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर कॉर्ड्स। अब मैं इंटरनेट पे जाके नहीं देख रहा कि भाई अगर कोई कॉर्ड है सी शार्प माइनर, जैसे नाम में इतना एकदम लोग डर जाते कि सी शार्प माइनर भाई क्या बोल रहा है। तो गूगल पे जाके तो ठीक है, वो बता देगा कि भाई ऐसे बजाते हो तुम, ऐसे पकड़ो, ऐसे बज जाएगा। बट आई वाज लाइक कि हाउ कैन आई फाइंड कॉर्ड्स दैट साउंड गुड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इट्स बिट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि सिंस मैं इतने शुरू से सीखता आ रहा हूँ म्यूजिक, मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो ट्यूनिंग आ गया था कि आई नो व्हाट साउंड्स गुड, व्हाट डज नॉट साउंड गुड। तो उस हिसाब से मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके कॉर्ड ना शुरू किए, और मेरे को समझ आया कि एक कॉर्ड जो है ई माइनर, उसको बजाने के ही 6-7 कम से कम तरीके हैं गिटार पर। देयर इज जस्ट नॉट वन वे टू प्ले द सेम कॉर्ड। क्योंकि गिटार कितना, उसका जो नेक होता है इतना लंबा होता है, जो फ्रेट बोर्ड होता है उसका, तो कई लोग सिर्फ इतने शुरू शुरू में ही सीख लेता है बजाना, बट जो बाकी का है वो किसके लिए है वहां पे, वो भी तो गिटार ही है। तो धीरे धीरे पता लगा कि इसका पूरा कैपेबिलिटी कितना ज्यादा है, कितना कुछ हो सकता है एक ही इंस्ट्रूमेंट पे। तो वो बुक नॉलेज और इंट्यूशन को साथ में लेके जब से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द पावर एंड द पोटेंशियल दैट इंस्ट्रूमेंट हैज। So that I would say is a very good approach to, I think, learn anything. You first acquire a little bit of the book knowledge, but then don't restrict yourself with it. You have to let your intuition, expression come out, जो कि आर्ट में बहुत बहुत जरूरी है। This is so well explained. I don't know if you, so what you said in terms of music is the same thing. Are you aware of this Canadian psychologist named Jordan Peterson? Jordan Peterson, yes. Yeah, so I have read both of his books, 12 Rules for Life and 12 Rules Beyond Order. So what you're saying is the exact same crux of both the books. So the first, yeah, the same exact same thing, not even a word here and there. I mean not a word, I mean not the feeling here and there. So the first book is 12 Rules for Life, okay, which is, as it says, that a person is not in a good state of his life. Okay, so how do you first of all get rid of the chaos? Okay, so that there is something for you to live upon, like a strong foundation. Okay, so those are 12 rules which will help you get rid of the unnecessary chaos, and you'll have some meaning to your life. Now the second book is where it changed everything. Okay, the book is named 12 Rules Beyond Order. So what is order? In the first book itself, order was created, which is like well defined. Everything is well defined over there. कि ये करो तो ये होता है, ये करो तो ये होता है. But in the second book, ये order तो create कर लिया, but order में ही तो नहीं रहना है ना. We have to go beyond that. So that book wala part, what you said is 12 rules for life, and intuition is your 12 rules beyond order. Exactly. Right. That's explained nicely. Yeah. मेरे को नहीं पता था ऐसे उनकी 2 books है. Like I've seen his clips and everything. Sometimes what he says makes एकदम ऐसे bullseye वाला point. Like भाई बात तो सही बोल गया बंदा. But yeah. And वही ना कि जैसे म्यूजिक करते करते I have started drawing analogies to life. एंड इतना कुछ समझ आने लगा है जिंदगी के बारे में, नॉट जस्ट जो मैं अपने गाने बना रहा हूँ, बट ओवरऑल जो मैं जिस तरह से सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ, उसमें चेंज आया है। एंड अभी जैसे मिड लाइफ क्राइसिस इज सच अ कॉमन थिंग। एवरीबडी इन देयर 30s, मतलब एवरीबडी तो चलो जनरलाइजिंग हो गया, बट अ लॉट ऑफ पीपल से ना वी आर गोइंग थ्रू दिस मिड लाइफ क्राइसिस। मिड 30s में you are under heavy financial pressure, and this is a time where you have to take care of your kids. At the same time you have to stop your ambitions, क्योंकि अगर मैं अपने ambitions पे खर्च करूंगा तो मेरे बच्चों के लिए कौन पैसे लाएगा। And then ऐसे में लोगों की marriage में problems होने लगती है। It's just a time where your life just starts going downhill. अब जब ये सबके साथ हो ही रहा है,
तो मैं अपनी लाइफ ऐसे अभी से चेंज नहीं कर सकता कि मैं उस पॉइंट पे ना पहुंचूं, राइट? तो ये तो वही बात हो गई ना कि वो रूल्स दे रखे कि सबको अपनी लाइफ में ये करना है, सबको अपनी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस के थ्रू जाना है। क्यों? क्यों जाना, तो एग्जैक्टली। क्यों जाना है? लाइक कांट यू डू समथिंग अबाउट इट? एंड इफ यू किसी भी रैंडम ओल्ड पर्सन को रोड पे पकड़ो एंड आस्क देम व्हाट इज वन थिंग दैट यू वांट टू टेल द वर्ल्ड, आधे से ज्यादा बूढ़े लोग यही सिखाते हैं कि बचपन में जो चीज करनी है वो कर लो, जिंदगी बहुत छोटी है। तो फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? राइट? तो मैं भी अगर आज से 40 साल बाद वैसा ही बूढ़ा आदमी बन गया जो लोगों को बता रहा हूँ कि काश मैंने वो कर लिया होता, तो फिर देन हाउ एम आई डिफरेंट? तो मैंने क्यों नहीं किया? तो अभी तो मैं उस फेज में हूँ जहां पे मैं चीजें कर सकता हूँ, then I should go ahead and not play by the rules, but instead do what I want to do. तो मतलब थोड़ा ये सब कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाता है, क्योंकि शुरू में हम बात कर रहे थे रिस्क असेसमेंट करना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम वी आर लाइक कि नहीं यार, लाइफ तो छोटी सी है, ये सब भी करना जरूरी है। तो No, but इजी तो नहीं है। yeah, it's not at all easy. See, putting both of your legs in two different boats is not easy. It's not easy, right? Because at one point of time you will have to switch to one boat as and when Exactly. you go ahead. So Right. yeah, this thing is so true that yeah, I mean, see, people have to be smart in some way कि अच्छा अगर सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं वो कैसे चीज अवॉइड करूं, because why go through the same thing that everyone is going through? Right. Rather I would do something के वो time पे at least I don't suffer as much as everyone is suffering. Exactly. I'm not saying the problems can be completely avoided because वो तो कभी होने नहीं वाला, but there has at least some way कि you know चलो ठीक है, मैं मेरे करियर मतलब ड्रीम्स तो परस्यू कर सकता हूँ, at the same time it's not affecting the people who are dependent on me some or the other way. Exactly. Oh, but I guess you are somewhat in in that direction where right now you're kind of balance ke you're doing your day job as well, at the same time you're pursuing your own passion. Somewhere down the line, like I don't know the exact term in how many years or so, but my guess is like 10-12 years down the line you will be at that point where you can confidently say bye bye day job, now I am doing completely music, my music is आपके मुंह में घी generating. शक्कर। मतलब if that day comes, I'll definitely call you up and say कि अरे you once told you on your podcast and it came true. Because everything that you have discussed so far, I told you about the book I input, I told the way you spoke, the projection is very simple. At one point of time you will hand over your resignation to your boss saying, boss, get For lost. sure, like exactly. क्योंकि see, जॉब करते करते एक चीज तो ये पता लग गई मुझे, like I have changed jobs in the past. Like अभी जो मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, पिछली मैं दूसरी कंपनी के लिए काम करता था, where I have had bad experiences and I left my job to find a new job. पिछली कंपनी में मेरे को ये एक चीज पता लगी लाइफ के बारे में कि कंपनी को घंटा फर्क पड़ता था जब तुम वहां नहीं थे, और तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद भी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राइट, यू आर वर्किंग फॉर somebody else's goals and you are getting paid for it, बस वो है। अगर तुम्हारा ठीक है वो काम पैशन है तो ठीक है, क्यों नहीं मैं किसी दूसरे के सपने में साथ दूं, राइट? ऑल दीज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिनको सही में कोडिंग प्रोग्रामिंग पसंद है, दे आर स्टिल वर्किंग फॉर somebody else. जो एकदम पैशनेट लोग होते हैं, दे डेवलप देयर ओन टूल्स, दे डेवलप देयर ओन एप्स। तो आई एम नॉट सेइंग द पीपल हु आर वर्किंग फॉर कंपनीज आर लाइक नॉट गुड, क्योंकि वो मैं खुद भी कर रहा हूँ, राइट? बट आई नो समवेयर कि यार ये तो मैं किसी और का सपना पूरा कर रहा हूँ, वो मेरा सपना नहीं है। सिंस आई कैन डू इट, इट गेट्स मी मनी, इट्स अ सेफ रोड, आई एम डूइंग इट। बट जहाँ पे आर्ट की बात आती है, जहाँ पे म्यूजिक की बात आती है, यार ये तो बहुत ही सिंसियर है ना, ये तो एक बहुत इंटीमेट चीज है मेरे लिए, कि ये मैं ना किसी और के लिए करना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली लाइक फ्यूचर में जैसे ही मौका मिलेगा कि भाई म्यूजिक अब मेरी थाली में खाना रख रहा है, तो भाड़ में जा दुनिया, लाइक आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड।
That's true. That's true. Yeah, this. So this is the 17th episode, 18th episode that I'm recording with you, Congratulations, man. and Nice. so far the people who have come, okay, and I'm talking about only the men over here who are going to be the providers in the future. Right. Somewhere down the line, okay, I don't know, is it the vibe that is attracting, or is it people, or is it my choice that I'm doing it? But जो अभी तक आए हैं ना, somewhere down the line they are in this phase only कि अरे ऐसा क्या करे कि I can quit my job one day. ऐसा क्या करे कि see, because at the same time I don't want to criticize the people who have dedicated their job 20-25 years से company को दे दिए, they have moved up the corporate ladder and stuff. But for people like us who are like, they need something that is really that we are passionate about, and we have a rational thing कि अच्छा, if these things can be done, I can achieve those things. दूसरे को achieve करना है नहीं करे, मुझे तो achieve करना है करके. Right. अब that's an interesting thing कि मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं सब इसी समस्या में पड़े हुए हैं. खैर अब तो ऐसा है कि अब तो like even with not just men, women are also, अब वो पुराना टाइम तो गया कि सिर्फ men ही provide for their family. Even I know a lot of, like, it's obviously not true for everybody, but a lot of females that I know जिनका मतलब ये dilemma रहता है कि एक family pressure तो रहता है इंडिया में. Then there is something that you want to do. Maybe there's a girl who sings very well. But then उसका singer बनने का जो रास्ता है उसमें there are so many obstacles where she has to take care of so many things. Right. तो बहुत added complications होते हैं, खासकर with women तो मतलब double ही complications होते हैं जो हम लोग समझ भी नहीं पाते, right? तो I think सभी वो problems face करते हैं, but it's all about how far can you go. कई बार एक पता है एक बहुत famous photo है, there's a comic where a guy is digging underground in search of gold, but gold के just थोड़ी देर पहले he stops, right? So it's exactly like that कि यार पता नहीं ना कब जाके हमारी मंजिल मिलेगी, but वो भी लगता है यार रुक गया. और मतलब if I am like कि भाई म्यूजिक से I am convinced कि this is not going to work for me, and if I stop making music I am like कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है. बट क्या पता अगर मैं बनाते रहता अगले साल ही कोई बड़ा आदमी सुन लेता और मेरे को अपॉर्चुनिटी होता, राइट? तो वही तो, लाइफ इज फनी, डिफिकल्ट, हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, बट एक ही है. There is this comedian, I don't know the comedian's name, but he jokes about this aspect के 10th के पेरेंट्स ने बोला 10th कर लो, 10th के बाद मजे है तो कर ली. फिर 12th के बाद बोला 12th के बाद मजे है वो भी कर ली. बोले इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद मजे है वो भी कर ली. फिर बोले MBA कर लो वो भी कर ली. अब बचा क्या? अब now I'll do what I want to do. स्कैम है भाई, ये लाइफ का स्कैम है. ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही आ रहा है कब से. उम्र निकल जाती है भाई, समझ नहीं आता यार कब बुढ़ापा आ जाएगा, एंड यू विल बी लाइक कि ये तो मुझे तब कर लेना चाहिए था. जैसे ही ये सेंटेंस आया दिमाग में कि ये तो मुझे तब कर लेना चाहिए था, समझ जाओ यू हैव स्टार्टेड लूजिंग द गेम. देयर इज नो पॉइंट. यू हैव टू अवॉइड कमिंग टू दैट सिचुएशन वेयर यू लाइक कि ये काश मैंने तब कर लिया होता. क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड ओवर माय एक्सपीरियंसेस कि लाइफ में देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिग्रेट्स. वन इज where I wish I would have done something. The second is where I wish कि काश ये मैंने नहीं किया होता. बट जो पहली वाली रिग्रेट है ना वो ज्यादा सताती है. चलो कुछ कर लिया, उससे कुछ बुरा हुआ, फाइन, बट यार वो वाली जो फीलिंग सताती है ना कि काश ये मैंने कर लिया होता, वो you can't live with that feeling, man. Come on, like just imagine if you are 70, 75, whatever, like you are nearing the final stage of your life. And you will just look back at your life and you will be like कि काश मैंने तब ऐसा कर लिया होता. कहाँ शांति मिलेगी यार? I mean, I hope that makes sense because I really strongly feel that way कि अगर है कुछ मेरे हाथ में करने के लिए, fine, I'll do it. कुछ गलत होगा तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट, जैसे हमारे फर्स्ट टॉपिक था कि थोड़ा obviously I should have the backbone to face the consequence, but I should do it if I have the means to do it.
But this, I guess you stay in America. It is called the land of the free will, something like that, कि जहाँ पे लोगों को जो करना है वो कर सकते हैं. But I don't know the reality, but ठीक है, वो मतलब दिखता है कभी कभी, because most of the stand-up comedians are from America. So okay, maybe there is scope for doing this artistic abilities over there, but who knows? यूएस का थोड़ा सीन कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब एक तरफ जैसे जब मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंस में ना अमेरिकन हार्डली मेरे बैच में 3 या 4 थे. और अजीब लगता था ना कि मैं यूएस आया हूँ कंप्यूटर साइंस पढ़ने और यहाँ भी सारे इंडियंस ही है मेरी क्लास में. मैं इंडिया में ही हूँ या कहाँ हूँ मैं. और फिर मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि ये जो 3-4 अमेरिकन है मेरी क्लास में, ये वो है जिनको सही में कंप्यूटर साइंस करना था. ना इनके घर वालों ने बोला, बिकॉज दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट. बट जैसे मैं निकलता था, या तो मैं हिस्ट्री क्लास को देखता था या मैं पॉलिटिकल से कोई दूसरे सब्जेक्ट की क्लास देखता था, वहां पे सारे अमेरिकन ही भरे होते थे. तो ऐसे लगता था कि मतलब एटलीस्ट यहाँ पे इतना फ्रीडम है कि लोगों को जो करना है वो वही करता है. ऐसे दे आर नॉट फोर्स्ड टू टेक अप एन ऑप्शन. पर यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि भाई यहाँ का हेल्थ सिस्टम तो बहुत उसकी वाट लगी हुई है. एक तो इफ बाय गॉड्स ग्रेस यू डोंट फॉल सिक हियर विदाउट एन इंश्योरेंस, तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी वो बिल चुकाते चुकाते. लोगों के साल की इतनी सैलरी नहीं होती जितनी तुम्हारा एक बार का हॉस्पिटल बिल आ सकता है. थिंग्स लाइक दीज पुट पीपल अंडर सो मच प्रेशर. उसके ऊपर से अगर तुम्हारा खुद का घर नहीं है, मॉर्गेज वगैरह पे अगर तुमने घर लिया है, तो लाइक तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा कॉलेज बिल अगर तुम खुद लोन पे चुका रहे हो एज एन अमेरिकन, इफ आई एम एन अमेरिकन, तो बहुत स्ट्रेस आ जाएगा मुझको. एंड देन आई विल बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स लाइक आई विल हैव टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, आई विल हैव टू डू 2-3 जॉब्स एट वंस, आई विल हैव टू ड्राइव एन उबर. तो ऐसा नहीं कि ये काम छोटे या बुरे हैं, बट फिर जो मुझे करना था, मुझे उसके साथ अब 4 और चीजें करनी पड़ रही है, राइट. तो ऐसे में भी अगर इंसान की शादी हो गई, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो वो कैसे सब मैनेज करेगा. तो इफ यू आर बोर्न इनटू अ रिच अमेरिकन फैमिली, लॉटरी जीत चुके हो तुम. कुछ नहीं चाहिए तुम्हें और लाइफ में. बट इफ यू आर लाइक फंडिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, लाइक आई डू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल. उनको कॉलेज फंड्स भी चुकाने हैं, साथ में गॉड फॉरबिड अगर कोई मेडिकल इशू हो गया, एंड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस भी यार कुछ इंश्योरेंस कवर करती है सारा कुछ, बट कई बार डिडक्टेबल्स इतने हाई होते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम्स ना यहाँ आके पता लगी, जो कि इंडिया से शायद बैठे बैठे मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसा भी होता है. It's very complicated. Right. So, Venu, you have been composing songs for like quite some time now, and do all the songs that you produce, and even the famous producers produce that, do they have meaning? Like, do music have a meaning? That's my question. Or is it, or it does not have a meaning? Sometimes yes, sometimes no. Because sometimes ऐसा होता है कि जैसे कई बार मैं आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, या तो मेरा कोई लड़की दिल तोड़ के गई है, या तो मेरी जिंदगी में कट रहा है, कुछ हो रहा है, एंड आई वांट टू राइट अ सॉन्ग अबाउट दैट. तो ऑब्वियसली द सॉन्ग विल हैव मीनिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरी. समटाइम्स यू जस्ट वांट टू हैव फन. मतलब कई बार गाने लोग मस्ती में बनाते हैं. जैसे रिसेंटली ना मेरा एक गाना आया था जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेट, और वो मैंने अपने कुछ 2 फ्रेंड्स के साथ बनाया था. तो वो सॉन्ग इज सपोज टू बी अ फन सॉन्ग. उसमें मीनिंग तुम ढूंढ लो तो चलो मिल भी जाएगा, बट ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है कि भाई इसका कोई बहुत डीप मीनिंग है, या तुम बैठ के इस गाना सुन के एकदम सदमे में चले जाओ, भाई ने क्या लिख दिया. दैट्स नॉट द इंटेंशन दैट. सो सम प्रोड्यूसर्स, कुछ लोगों का शुरू से एम होता है कि वील जस्ट प्रोड्यूस डांस ट्रैक्स. हमारा गाना क्लब में बजना चाहिए और लोग इस पे नाचने चाहिए. Okay. तो भाई वो गानों में फिर मीनिंग कहाँ से आएगा? वो गानों में सिर्फ ये है कि बीट्स तगड़े होंगे, या जो उसका जो पंपी म्यूजिक है, जो टेक म्यूजिक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है. सम पीपल डू दैट, इट्स नॉट रॉन्ग, फाइन. भाई क्लब में जाऊंगा तो थोड़ी ना अगर मैं अपना गूंजता अल्फाज बजाऊंगा तो तुम नाचोगे थोड़ी ना उस पर. तो यू नीड समथिंग टू रियली पंप यू अप, राइट? एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू दैट. समटाइम्स आई लाइक टू मेक सॉन्ग्स जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, क्योंकि कई बार मीनिंग के गाने बनाते बनाते यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल डाउन अबाउट योर म्यूजिक,
कि कुछ नया करना है मुझे, अभी मैं इस लाइक सॉरो और इसमें से निकल के कुछ हैप्पी बनाना चाहता हूँ। और हैप्पीनेस ऐसे तो मिलती नहीं है। इफ यू राइट नाउ जस्ट आस्क मी कि व्हाट आर यू सैड अबाउट, आई विल टेल यू 5 थिंग्स, बट इफ यू आस्क मी व्हाट आर यू हैप्पी अबाउट, मुझे सोचना पड़ेगा और शायद मैं 1-2 चीजें बता पाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसे डिप्रेशन में हूँ, बट ये आई थिंक सब लोगों के साथ होता है। हैप्पीनेस को कई बार ना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट लोग अपने दुख दर्द बहुत ऐसे फटफट सुना सकते हैं, सबके जुबान पे होते हैं उनके दुख दर्द। सो म्यूजिक के लिए ऐसे देर इज नो सेट पैटर्न कि इट ऑलवेज नीड्स टू हैव अ मीनिंग या इट ऑलवेज हैज टू कन्वे समथिंग, क्योंकि इवेंचुअली अगर म्यूजिक को एकदम हम ब्रेक डाउन करें तो बहुत दिमाग खराब होता है। लाइक क्या है, इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसीज जो तुम्हारे कान के थ्रू तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और वो सुन के या तो तुम्हें खुशी होती है या तो तुम्हें दुख होता है। सो इट्स वेरी फनी राइट कि तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है वो फ्रीक्वेंसीज के साथ, ऐसा कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है उससे। एंड इंटरनली इट्स जस्ट हार्मोन्स, केमिकल्स। वैसे बायोलॉजिकली स्पीकिंग इट्स वेरी वियर्ड व्हेन यू थिंक अबाउट इट। If maybe there is like, if can you tell me a sad song or a happy song, whatever, like if I ask you a song associated with an emotion, can you like name a song? Yes. Like if you tell me sad, so I don't listen to sad music. That is not my taste. Cool. I listen to like pumpy music, and which Right. is like kind of like aggressive and stuff like that. So, but happy, if you tell me happy song, there is one go-to song that I always listen to when I'm happy. It's like the name only is Happy by I forgot his name. What was his name? I'll just I Yeah, what's his sure. Take your time. It goes like, because I'm happy. Pharrell Williams का है ना ये? Yeah. Right. Yeah. Okay, so Pharrell Williams. that's a very good example. So now I would like to ask you कि why does that song make you feel happy? Is it just because he's saying the words happy in it, या there is something about the song? अभी जैसे उसका main line है because I'm happy. अगर मैं ऐसे बोलूँ because I'm happy, are you feeling happy? No, that doesn't make the way he sings it, the way the music is playing, it makes you happy. Right. तो ठीक है, like for a layman, वो गाना सुनता है, उसको अच्छा लगा बुरा लगा खत्म। But from a composer's point of view, I start thinking गाने में ऐसा क्या था जिससे मेरे को अच्छा लगा। So like try doing that exercise kabhi. Like I wouldn't say कि you have to be a composer to think like that. Even for anybody, even a casual listener, you just listen to a song and be like, what is there inside this song that is doing that to me? And then you'll start to realize कि कई बार गानों में जैसे the choice of instruments, the choice of the singer's voice, ये सब बहुत मैटर करता है। इसमें वर्सेटिलिटी की बात आ जाती है। जैसे इंडिया के जो अपने किशोर कुमार है, उनकी वॉइस ऐसी थी कि भाई वो सैड से सैड गाना भी एकदम इमोशंस के साथ गा के एकदम हैप्पी से उन्होंने ऐसे गाने भी गाए ना, जैसे एक चतुरनाथ, बड़े ऐसे फन सॉन्ग्स भी गाए कि लाइक इट्स द सेम वॉइस बट इट्स डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू यू। एंड दैट इज जस्ट लाइक इट ब्लोज माई माइंड कि भाई तुम्हारा ब्रेन उसी आवाज को अभी डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करना है, तो कैसे? एंड ये ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना गाना बनाने जाता हूँ तो फिर ये चीजें आती है दिमाग में कि भाई ये गाना सुन के मुझे अच्छा लगना चाहिए, या मुझे दुख इसमें एक्सप्रेस करना है तो इसमें दुख आना चाहिए। तो कैजुअल लिसनर्स डोंट डू दैट, व्हिच ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि कोई भी गाना सुने तो वो एग्जाम देने थोड़ी ना बैठ रहा है, उसको गाना सुनना है। बट समटाइम्स लाइक यू नीड टू थिंक अबाउट कि एग्जैक्टली व्हाट्स देयर इन दिस सॉन्ग। तो जैसे फैरेल विलियम्स का जो हैप्पी है, आई एम श्योर उसमें एक तो जिस तरह से उसने गाया है, उसकी वॉइस थोड़ी उसने हाई करके गाई है, उसमें जो उसकी मेलोडी है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए, कहीं कहीं ऐसे छोटी छोटी बेल्स बज रही है पीछे, तो आवर ब्रेन यूजुअली इंटरप्रेट्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स विद हैप्पीनेस। एंड व्हाई डज दैट हैपन? अब उसके भी बहुत साइकोलॉजिकल रीजंस है, क्योंकि बेल्स आर थिंग्स यू लिसन टू एज किड्स। जब तुम बच्चे होते हो तुम्हारी लाइफ में दुख नहीं होता है, तो ऐसे तुम अगर रैबिट होल में गिर गए तो यू विल डिस्कवर सो मेनी थिंग्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। दैट्स व्हाई आई से कि म्यूजिक इज नॉट जस्ट म्यूजिक, इट्स अबाउट
ब्रेन से लेके यूनिवर्स से लेके हर चीज इसमें आ जाती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. एंड नॉट जस्ट म्यूजिक, विथ every art form, everything that you create has just layers and layers. वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अंदर जाना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है उसकी. Right. It's fun, deconstructing things. Even I, like you deconstruct music because you have a taste in music. Right. My deconstruction is I like to deconstruct a person's personality, or I like to deconstruct Right. businesses. No, yes, Yes. I'm leaning towards more a realistic kind of thing rather than a more abstract thing. But deconstruction is fun. It is always fun. I think you mean more practical. Yeah, more जो practical मतलब things. हाँ, Right. right. Makes sense. हाँ, but So, you can do that with anything and it's fun. yeah, it's Like वो fun. पता लगता है ना कि वो black box हट जाता है. अब as kids we all see magic tricks, but कई बार होता है ना, वो ट्रिक पता लगने के बाद मजा नहीं आता है कि अच्छा ये ऐसे कर रहा था, वो वाली फीलिंग अलग. बट वो some people just love that कि भाई I have to know how he did this. तो म्यूजिक भी ऐसा अगर सुन के खुशी हो रही है तो दैट्स मैजिक. बट हाउ डिड ही अचीव दैट, या हाउ डिड शी अचीव दैट, उसमें तो वो पता लगाने के बाद कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है कि अच्छा ऐसे था. सम पीपल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ओ डैम, कि ऐसी चीजों से खुशी जनरेट, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है उसको खुशी के तरह. You said that that music is like an entire galaxy and goes through your brain and stuff like that. So this is what I've heard on YouTube, that Jordan Peterson says that music is four-dimensional. Okay, like I don't know what is the fourth dimensional that he's talking about, but as far as I remember, it is the experience. Like first three to constant he have, which includes time, length, breadth, and height. But the fourth one is फर्स्ट experience. तीन So is how हाइट, ब्रेथ, लेंथ. हाँ, time I would say, yeah, time, or yeah, whatever that thing is. But I'm not sure about it. But he says that it's four-dimensional. So what is your take on the music being a four-dimensional or element, or what would it? see भाई मतलब like 3 dimensions as we know is a physical quantity. Every object that we know of has 3 dimensions. सबकी एक लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. अभी ये 4 dimension for us 3 dimensional being सोचना ही is a challenge. Like what exactly is this 4th dimension? It's like कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया सिर्फ एक वो 2 dimensional प्लेन में एग्जिस्ट करता है. उसके सामने अगर यू पुट अ 3D ऑब्जेक्ट, उसको वो बॉल नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ वो बॉल का उतना हिस्सा दिखेगा जितना उसके प्लेन में. तो इट विल जस्ट सी अ लाइन. तो अगर बॉल ऊपर से नीचे जाएगी तो वो लाइन ऐसे बड़ी होगी और फिर छोटी हो जाएगी. उसको वो बॉल क्या है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं होगी. सिमिलरली फॉर अस ह्यूमंस जो हम 3D में रहते हैं, अगर हमारे सामने ऐसा कोई 4D ऑब्जेक्ट आ गया तो हमको वो 3D में ही दिखेगा. लाइक वी जस्ट वोंट नो कि एग्जैक्टली 4th dimension क्या है. तो वो जो 4th dimension वाली चीज है, it's जैसे people like to say कि time is the 4th dimension. Because now rather than just physically आगे पीछे होना, तुम टाइम में भी आगे पीछे हो सकते हो. Because time as we know it just flows in one direction. हम सिर्फ आगे ही जा सकते हैं. बट अगर टाइम में भी हम आगे पीछे जाने लग गए, मतलब टाइम भी अब एक डिमेंशन बन गया हमारे लिए. तो वो एक चीज है. Yeah, Now, this music I being now that you told me this, I figured something out. Yeah. So let's say if I tell you that play a song that reminds you of your birthplace, like you're from Delhi, so ऐसा कुछ गाना बजाओ तो that takes you to Delhi. So obviously this is like a fourth dimension, because right now you're in America, but you want to go back to the phase where you were enjoying your times in Delhi. So I guess this is what he's referring to, which includes time and experience as a fourth dimension. Probably, yeah. Because see, again, if you break that down, it's very simple कि भाई वो गाने में ऐसा तो कुछ है, या तो वो गाना तुम बचपन में सुनते थे जो तुम्हारे ब्रेन ने कहीं तो स्टोर करके रखी इन्फॉर्मेशन. तो as soon as you listen to that song again, एकदम से your brain activates that part जहाँ पे वो memory stored थी, and you are taken back to that time बचपन में जब तुम वो गाना सुनते थे. नहीं, एकदम से you are you feel like you are back in time. तो
you're obviously not literally back in time, but you feel as if you're back in time. So we love to say कि भाई music has 4 dimensions. तो it's again like थोड़ा वो आ जाता है ना कि कितना तुम फिलोसॉफी में बिलीव करते हो, कितना एकदम प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हो. तो प्रैक्टिकल बंदा तो ये बोलेगा ना कि ये तो वहीं बैठे बैठे गाना सुन रहा है, कहाँ इधर उधर बनना क्या है. बट फिलोसॉफिकली समवन वुड से कि नहीं यार, ही फेल्ट दैट सेंसेशन, समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग मेड हिज ब्रेन गो बैक टू दैट मेमोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड मैं यूनिवर्स की जो बात कर रहा था ना, वो इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस को ना पैटर्न्स बहुत पसंद है. जहां पे भी केओस होता है हमारा दिमाग खराब होने लगता है. जो मैथ है, मैथमेटिक्स, वो पूरा क्या है, इट्स ऑल बेस्ड अराउंड पैटर्न्स. जैसे पाए जो नंबर है, इट डज नॉट एंड राइट 3.14 एंड इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन. एंड वी आर येट टू फाइंड आउट अ पैटर्न कि भाई ये इररेशनल नंबर्स का क्या पैटर्न होता है. तो इट्स ट्रबलिंग अस. बट जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, बाकी जितनी भी मैथमेटिक्स है, इसमें एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है. तो हम ह्यूमंस को फिर वहां पे शांति मिलती कि अच्छा नहीं, यहाँ पे एक ऑर्डर है. म्यूजिक में भी सेम चीज है. एक पियानो को देख लो, उसमें जितने भी कीज है, इफ यू जस्ट बैंग ऑन ऑल ऑफ देम टुगेदर, इट्स जस्ट केओस. But a few patterns, a few melodies can be sad, can be happy, can make you feel good. So in that chaos, we are looking for patterns. And the same thing you can apply to even universe. क्योंकि मैथ में ऐसा है कि हमने एक सेंटर पॉइंट चूज कर लिया 0. हमने बोल दिया 0 के ऊपर के पॉजिटिव नंबर, इसके नीचे गिनती नेगेटिव में शुरू हो जाती है. तो ये रूल किसी ने हमको दिया नहीं ना, ये सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया कि भाई इससे थोड़ा एक ऑर्डर, एक सिमेट्रिसिटी आ गई पूरी चीज में. म्यूजिक में भी जो सारे गा मा पद नहीं है, ये कोई रूल थोड़ी ना है. ये तो बस हमने इसलिए बना दिया था कि भाई सा हमारे लिए एक 0 बन गया. सो वो सा से मेरे को पता है कि इसके ऊपर जाऊंगा तो रे आएगा, इसके नीचे जाऊंगा तो वापस से नी शुरू हो जाएगा. राइट. तो इसलिए मतलब मैथ और म्यूजिक तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है आपस में, बिकॉज इन बोथ ऑफ देम वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट पैटर्न्स इन ऑर्डर इन केओस. एंड यूनिवर्स भी मतलब फैला हुआ है इतना. देयर इज लाइक इफ यू जस्ट पुट योर इंडेक्स फिंगर टू द स्काई, उसके पीछे देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इतनी दूर, जो वी कैन नेवर फाइंड आउट अबाउट. तो वी एज स्पेस एक्सप्लोरर्स जस्ट वांट टू फाइंड सम पैटर्न, सम ऑर्डर, जिससे वी कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिवर्स होल्ड्स. नहीं तो ऐसे ही सोचने लग गए तो there is no end to it, right? Numbers, if I ask you to start comprehending infinity, तो दिमाग खराब होने लगेगा ना कि infinity क्या है. Is there a thing as, अच्छा, so infinite अगर मैं बोलूँ और मैं बोलूँ कि there is number infinity divided by 2 and I'll ask you कि which number is bigger, तो your brain will start crashing ना कि ये कैसा सवाल है. Like it just does not make sense कि infinity और infinity divide by 2, आइडियली तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 छोटा होना चाहिए, बिकॉज मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. राइट. वो भी तो एक इन्फिनिटी ही है ना. तो मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी एक पागल जैसे साउंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है. तो बट जब इसमें थोड़ा सा एक ऑर्डर आ जाता है, मैथमेटिक्स स्टार्ट मेकिंग सेंस, म्यूजिक स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, when the universe starts making sense. जैसे हमें पता लगा कि ठीक है, we are in this solar system, our solar system is in a galaxy, our galaxy is in a local cluster of galaxies, local cluster of galaxies एक बड़े cluster of galaxies में. तो थोड़ा थोड़ा हमको फिर मिलता है कि अच्छा नहीं, एकदम भी ऐसे सब बवाल नहीं मचा हुआ है यहाँ पे. there is at least some order to it. Right. So this is kind of no, so this is you're the first like full science background guy that I'm talking to as a guest. Okay. And I have wanted to have people who are come from like the science background, engineering kiya, and who are into this artificial intelligence and machine learning and stuff. Now the thing is, I was pathetic in science throughout the school. Okay. But at the same time, now that I've grown up, I think that, oh no, these things are actually interesting. It is fun to, open up the television and see how those things work. Although I don't understand it,
but maybe there is a possibility that if somebody can tell me acha ye iska kaam ye hai, then I can see, okay, acha, this is interesting. Because what happened is, I also listen to Lex Friedman ka podcast sometimes, and the way he talks about science, okay, like Right. ye this is interesting, ye jo bol raha hai ye sach to hai. So that kind of Right. thing that has started to fascinate me, and it's not that I was bored when I was listening to all this galaxy and stuff like that. I was in that, Right. मेरे पीछे by the back of my mind those images were forming के ये क्या बोल रहा है. So Exactly. so it's See, not अभी boring ऐसा है to कि talk if you about it. can just look up on Google, so if you can search the meaning of physics, वो physics word जो है वो कहाँ से आया है, so you will see. Can you do that right now? Like Dave, एकदम can you pull accurate. up Google? No, I have always wanted to talk about this subject with people, that when you were in school, why did you dislike a subject? Probably you are an engineer, so you must have disliked English or history, geography, or things like that. My Actually, to guess, be very honest, I mean, yeah, that is true. But as even though I did engineering and everything, school में I was not good in physics, chemistry, biology. I was still good in physics and math, but chemistry तो मेरे पल्ले आज तक नहीं पड़ा. And so I'll tell you the reason why, and that's why that meaning is very important, because physics, the way it is taught, is I think very flawed. It is necessary, but बहुत flawed है. क्योंकि physics is about what we observe in this world. Physics is the reason why we are sitting here. It is the reason why हमारे अर्थ पे हम मतलब छूट नहीं जा रहे, हमारा अर्थ क्यों एक सर्टेन वे में घूम रहा है. Everything, the buildings that we make, everything is physics. और physics भी perfect नहीं है. मतलब even if you look at a circle के एरिया का जो भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो पाई तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं ना, 3.14 बोल देते हैं या 22/7 बोल देते हैं. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है. तो बेसिकली वी एज ह्यूमंस कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ अ सर्कल. वी कैन अप्रोक्सीमेट टू वेरी ग्रेट हाइट्स, या एकदम टू लाइक 10-20 प्लेसेस ऑफ डेसिमल भी हम निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट एरिया हम सर्कल का नहीं निकाल सकते. तो आवर फिजिक्स इज जस्ट गुड इनफ कि भाई हम वी कैन क्रिएट बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट ये भी परमानेंट नहीं होते ना. ऑल ब्रिजेस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और टूट भी जाती है, गलतियां भी होती है. तो हमारा फिजिक्स बस उतना हमको हेल्प कर रहा है कि भाई हम वी कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पेस और ये सब. अब स्कूल में हमें फिजिक्स कैसे सिखाता है, वही नोटबुक में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि वो न्यूमेरिकल्स क्यों सॉल्व कर रहे हो. बच्चे पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्या करूंगा, and they're right. वो अगर if they are not going to go into that field, if they are not going to, मतलब trigonometry has such a practical place in life, right? Application in life, yeah. Like it's such an important thing. अब केमिस्ट्री के लिए मैं ये सोचता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों रखूं जब it's nowhere going to help me in life, and it still isn't. Like मैं क्या करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. But at the same time, organic chemistry is the reason I am alive. जो मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ डे टू डे, या जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो इट्स ऑल अबाउट पीपल डूइंग दोज थिंग्स जिसमें सही में उनका एक पैशन है, या दे वांट टू गो अहेड एंड लर्न इट. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में वो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. कि इफ आई एम टीचिंग यू फिजिक्स, तो आई हैव टू मेक श्योर यू नो कि ये मतलब मैं सिर्फ वो फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, न्यूटन के 3 लॉज नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये मैंने बॉल ऊपर उछाली है, वापस नीचे आ रही है. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन. मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो मुझे वापस घूम के देगा. तो माय आइडिया है कि ये बहुत जो बुक बेस्ड, यहाँ पे भाई बुक वाली बात आ गई कि बुक बेस्ड अप्रोच ना खत्म कर रहा है. बट चेंज भी नहीं कर सकते ना, नेसेसरी भी तो हो गया जैसा हमारा सिस्टम है. कैसे तुम इतने सारे बच्चों को बाहर गार्डन में ले जाके पढ़ा सकते हो, बच्चे खेलने लग जाएंगे, सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात. तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो तीनों के वर्ड्स के इफ यू चेक आउट द मीनिंग्स, दे हैव टू डू विद लाइफ इन जनरल. बायोलॉजी इज आई थिंक द स्टडी ऑफ लाइफ. लॉजी is study and bio means I think life. Dave has pulled that up, so now we can have a look at yes what's the meaning of physics.
द फिजिक्स फर्स्ट वन विकिपीडिया वाला खोला? उसका कोई, हाँ विकिपीडिया में ना एक एटिमोलॉजी करके सेक्शन होगा, उसमें जाता है। हाँ कम डाउन, नीचे नीचे वो वर्ड का जो पूरा उन्होंने वो समझा होगा, लाइक कम कम मोर डाउन, आते रहो नीचे आते रहो। फिलोसफी। हाँ, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर। अभी नॉलेज ऑफ नेचर तुम किताबों में कहाँ सिखा रहे हो बच्चों को? इट्स द नॉलेज ऑफ नेचर, राइट? राइट। सो यही मतलब है कि जब ये एंशियंट ग्रीक वालों ने नाम रखा फिजिक्स इस चीज का, हाँ हाँ जो हाँ। दे नेम्ड इट बिकॉज दे वर ऑब्जर्विंग इट इन द नेचर एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट नेचर। नॉलेज चाहिए कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही है ये क्यों हो रही है। हम ऊपर देख रहे हैं स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ये क्यों ट्विंकल कर रहा है? बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, लाइक कोई नहीं जानता यार, किस मतलब हम सब जानते हैं आसमान नीला है, बट किसी से भी पूछो आसमान क्यों नीला है, कितने लोग बता पाएंगे? तो it that is what physics is, knowledge of nature. So the way we are taught, it's just, and I don't blame you if you're telling me कि you were not interested in science, because मैं खुद नहीं था, जबकि मैं आज जाके like you when I started actually understanding कि भाई ये चीजें क्या significance hold करती है। I'm like यार ये स्कूल में मेरे को किसी ने बता दिया होता तो आज मैं मतलब पढ़ रहा होता फिजिक्स बैठ के एकदम, no? If So, this yeah. obviously this theory can be true that लोगों को उसका application एक बार बता दे तो people might perceive the subjects differently, but there is another theory that I have, this is and based on my experience, that it also depends on the teacher who is teaching you. So if the Very teacher is true, coming here very true. just to get paid, so she or he will not put in efforts to explain physics in the most interesting manner. Right. वो तो आएगी वो definition, this is body, this is conclusion, the physics का portion is over. Absolutely. वही तो फ्लॉ है ना सिस्टम में। अब तुम टीचर्स का पे बढ़ाओ, टीचर्स का पे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो बात करने जाओगे तो फिर तो दुनिया खत्म है। Yeah. तो या आई मीन अब ये सब चीजें हैं, इसलिए पर इसमें कई बार होता है कि लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ टीचर इन एनीथिंग दैट यू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं जैसे मैंने गिटार जो सीखा, आई एम सेल्फ टॉट गिटारिस्ट, मेरे को ऐसे किसी ने आके नहीं सिखाया, मैंने रेफरेंसेस लिए कहीं कहीं से, बट जो भी है मेरा वो जो इंटुइशन बुक अप्रोच वो दोनों फॉलो करके मैंने खुद से सीखा। बट अगर आज कोई मेरे पास आएगा मुझसे गिटार सीखने के लिए, तो मैं इंश्योर करूंगा कि पहले मैं समझूं कि क्यों सीखना चाहता है गिटार। लाइक अगर उसका गिटार बजाने का सिर्फ ये एम है कि उसको एक पार्टी में बजा के 2 लोगों को इम्प्रेस करना है, तो मेरा अप्रोच अलग होगा, मैं उसको सिर्फ उतना ही लिमिट तक सिखाऊंगा। गुलाबी आंखें सीखेगा देखे गुलाबी गुलाबी आंखें सिखा दूंगा उसको, 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको। बट राइट, एंड इफ ही इज लाइक कि अगर उसने ऐसी कोई बड़ी भारी बात कर दी कि आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तब तो आई बी लाइक कि भाई नाउ वी आर इन फॉर अ राइड। क्योंकि जब इसने ये बात बोल दी मतलब अब ये गिटार को समझना चाहता है, ये म्यूजिक को समझना चाहता है, तो वहां पे आई वुड नॉट केयर कि भाई मेरे को पैसे मिल रहे हैं इस चीज से या मेरे को क्या होने वाला है, बट अब मैं जानता हूँ कि भाई ये बंदे की मेरे को पूरी हेल्प करना है ताकि ही कैन यूज द गिटार टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो ऐसे टीचर्स हैं, मैं जानता हूँ ऐसे, मेरे स्कूल में 1-2 ऐसे टीचर्स डेफिनेटली थे जो मतलब पैशनेट थे। हमारी हिंदी टीचर बहुत पैशनेट थी, मतलब पीरियड खत्म बेल बजने के बाद भी बच्चे क्लास में बैठे रहते थे, टीचर भी बैठी रहती थी जब तक दूसरी टीचर ना आए, बिकॉज वो चैप्टर कहानी सुनाती थी, पर वो कहानी के साथ साथ फिर वो और भी, हम जैसे हमने म्यूजिक की टॉपिक शुरू की, बट हमने क्या क्या नहीं बातें कर ली, राइट? तो उनकी क्लास में भी सेम चीज़ होती थी कि भाई ठीक है वो चैप्टर पढ़ा, वो कवि का जो भी बर्थ प्लेस है वो सब हटना पड़ता था, वो तो कर लिया, बट अब उसने कहाँ बैठ के वो कविता लिखी, किस सोच में लिखी, उन सब चीज़ों की बातें करने लगते थे, तो हम बच्चों को भी बहुत मजा आता था उस टाइम पे। तो वो टीचर्स तो डेफिनेटली लाइक जरूरी होता है, क्योंकि तुम हर बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये इसके अंदर वो कॉन्शियस डेवलप हो जाएगा, राइट? So now this last series of questions that I have for you. So I'll give you an emotion, okay? And you have to tell me the song that you like, it's your go-to song. Like when you ask me when you're happy, what song do you listen to? तो मैं बोला कि Happy by Pharrell Williams. So I'll give you a few emotion
Though you tell Food. me which, yeah, okay. So when you wake up, what is, सुबह uh, उठते साथ yeah, like if the song that you had to play, के, you know, that really makes your day great, तो वैसे वो कौन सा song होगा? एकदम से ऐसे कोई सॉन्ग दिमाग में तो नहीं आ रहा है, बट मोस्टली अगर सुबह उठते साथ मेरे को कोई म्यूजिक सुनना हो ना, तो इट्स हम्म डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी ऐसे सैड सॉन्ग, हम्म। इट हैज टू बी समथिंग कि मेरे को इट मेक्स मी एक्साइटेड अबाउट द डे. राइट। तो ऐसे में मोस्टली आई आई पर्सनली लिसन टू सॉन्ग्स दैट डोंट रियली हैव वोकल्स. जैसे कुछ म्यूजिक के कुछ मूवीज के साउंड ट्रैक्स मुझे बहुत पसंद है, एंड हम्म। स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स इज हैंस जिमर. तो अच्छा। हैंस जिमर हैज वर्क विद क्रिस्टोफर नोलन, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट, वो बैटमैन सीरीज, काफी सारी मूवीज हम्म। का हैंस जिमर ने म्यूजिक दिया. तो इसकी देयर इज दिस मूवी नोन एज द लास्ट सैमुराई जिसमें टॉम क्रूज था. उसका साउंड ट्रैक इज वेरी ब्यूटिफुल. एकदम इट्स नॉट लाइक एनर्जेटिक, बट इट जस्ट काम्स यू डाउन. तो सुबह उठ के ना आई यूजुअली गो टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक जिसमें कुछ वर्ड्स नहीं है. ओके, इट्स जस्ट अब वो म्यूजिक। सुन के बस शांति मिलती है. लाइक आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द डे कि ठीक है अभी जो भी होगा हम कर लेंगे, उस टाइप का. राइट, ओके. एंड व्हेन यू आर हैप्पी? हैप्पी तो काफी सारे सॉन्ग लाइक अगर हिंदी की बात करें तो एक कोक स्टूडियो का सॉन्ग है चौधरी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा। उस एक राजस्थानी स्टाइल में अमित त्रिवेदी जो कंपोजर है उसका हाँ हाँ। कॉम्पोजिशन है वो. और चौधरी से सॉन्ग, उसके लिरिक्स भी इतने प्यारे, लाइक ही इज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिज लवर बट नॉट इन अ सैड वे. वो ऐसी ऐसी लाइन से गाने में कि जब तुम हमारे गाँव आओगे तो मालपुए पे ज्यादा घी डाल के खिलाऊंगा, और मतलब बहुत प्यारा सा राइट। फन सॉन्ग है So in और terms पूरा of राजस्थानी gestures, in जेस्चर्स. love and यस, gestures के, हाँ समझा. राइट. और द वे ही संग इट, मामे खान का आई थिंक एक राजस्थानी फोक सिंगर है, पूरे वो राजस्थानी बोली में गाना गाए. इट जस्ट मेक्स मी वेरी हैप्पी. तो एक वो गाना Right. And when you're working out? वर्किंग आउट के टाइम के एक दो गाने हैं. वेट आई नेम वन सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में, उसका नाम याद नहीं है. देयर इज दिस सॉन्ग नोन एज रन फॉर योर लाइफ. Run दिस for your सॉन्ग life. भाई मतलब ये गाना ऐसा है कि रात के 3 बजे भी मेरे को उठा के सुना दो कि मैं बोलूंगा डंबल लाओ भाई. क्योंकि वो गाने में है ही वो बात. इट्स गॉट सो मच एनर्जी. जो जिस तरह से गा भी रहा है वो बंदा, बहुत ही पावर देता है वो. Oh, wow. And one last one. When you're going to office, okay, and you need that vibe के, अच्छा ऐसे एटलीस्ट ग्रूव करे, तो कौन सा सॉन्ग? कि ऑफिस देयर, ऑफिस ऑफिस के लिए एक गाना है, एक डाफ्ट पंक का एक सॉन्ग है गेट लकी, जिसकी लिरिक्स है मतलब इट्स ऑब्वियसली कि वेयर अप ऑल नाइट टू गेट लकी. तो मतलब ऐसे ऐसा नहीं मैं ऐसे नहीं चाह रहा कि मैं ऑफिस में आज कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, बट वो गाने का जो ग्रूव है, जो वाइब है, आई जस्ट लव दैट वाइब व्हेनेवर आई एम इन अ बस या कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं. हाँ उस टाइप के गाने मुझे पसंद है बिकॉज़ इट जस्ट पुट्स यू इन दैट नाइस वाइब. सही है, सही है. तो ग्रेट वेनु, इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड एब्सोल्युटली बहुत मजा आया. I really enjoyed talking to you. And Like, in I'm fact, I got glad to we learn. started with music, but then we went to all of these different topics. It's just nice. Wow, but it's fun. I mean, see, that's the thing. Now, see why I didn't. I don't give it to anybody. It's not only with you. अभी तक जितने भी guest आए, nobody has gotten the exact questionnaire because कि अगर तेरे को क्वेश्चनर भी दे दिया किसी को, ओके, तो दे विल बी लाइक, अच्छा ये क्वेश्चन पूछने वाला है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, एंड देन आई विल कम ऑफ एज वेरी स्मार्ट ऑन द पॉडकास्ट, ओके, बट सी दैट इज नॉट व्हाट आई That's इंटेंड not टू the डू. point. Exactly. बट No, इट्स I'm glad. I'm pretty happy with your approach. कि मतलब it's just going to be एकदम candid. वो Instagram के fake candid photos जैसे नहीं इधर उधर देख के खिंचवा रहे हो. and I mean, I did not expect that ये conversation will start with music and responsibility and accountability, and then it will venture into like science and To be very honest, even I did not expect, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे भी रात के 1-2 बज रहे हो, मैं इतने deep philosophical thought में चला गया हूँ.
It's just Right. crazy. But like I said, like कि ये music तो ठीक है, बस एक art form है कुछ लोगों के लिए, but it's in a way connected to everything that I मतलब as a musician जो भी मैं सुबह से लेकर रात तक करता हूँ, जिस तरह से लोगों से बात करता हूँ, जिस तरह से खाना खाता हूँ, बनाता हूँ, सब कुछ अफेक्ट करने लगता है मेरा म्यूजिक मेरे लिए. Hmm. So it's life for me, and for people different things. Like if you just say, I'm sure your podcast influences you as a person, right? Yes. Yes, I'm sure it definitely. does. Yeah, Right. that's true for every art form. I'll just stop the recording now 1 minute. Done.